السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ باعث سویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 23 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہما نے شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں محبت کی ہلکی سی شوخی بھی شامل تھی جو اس کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے شہزیب کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی خفگی نمایاں تھی۔ شہزیب نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر نظریں جھکا لی۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ اس کی پیاری بیوی کی شکایت بالکل جائز ہے۔ خانم، تمہاری شکایت پر ہم سرخم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خطا وار ہیں، چاہ کر بھی اس وقت تمہیں وقت نہیں دے پا رہا کیونکہ مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے شوہر کو دل کی سرجری کے شعبے کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے۔ اب تو تمہارا شوہر مصروف رہے گا اور مجھے روز اپنی بیوی کا ناراض چہرہ دیکھنا پڑے گا، اور ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کو مناؤں گا اور اس کے لیے بہت سارا وقت نکالوں گا تاکہ وہ خوش رہے۔ ڈاکٹر شاہزیب نے پیار سے ڈاکٹر ہما کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے گلے میں بازو ڈال لیے تھے۔ ڈاکٹر ہما اپنے ڈاکٹر صاحب کے پیار بھرے لہجے پر فدا ہوتے ہوئے اپنی ناراضگی بھول چکی تھی۔ اب معافی مل سکتی ہے یا کان پکڑنے پڑیں گے؟ شاہزیب اس کے چہرے پر چہرہ جھکاتے ہوئے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہزیب پلیز شرمندہ مت کیجیے، میرے پاس تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی جس کو بتائے بنا مجھے چین نہیں آ رہا، اس لیے بڑی مشکل سے ایمرجنسی سے ٹائم نکال کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ایمرجنسی میں کتنا رش تھا۔ وہ پیار سے شاہزیب کے ہاتھوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، کیسی خوشخبری جو میری ڈاکٹر صاحبہ برداشت نہیں کر پائی اور ایمرجنسی سے اپنے رولز کے خلاف نکل کر مریضوں کو چھوڑ آئی ہیں؟ ڈاکٹر شاہزیب نے مسکراتے ہوئے شوق انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچ لیجیے، خوشخبری بہت بڑی ہے۔ اگر خوشخبری ڈاکٹر صاحب کا دل برداشت نہ کر پائے اور خوشی کے مارے سر چکرا گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے خیال سے آپ آرام سے اپنی چیئر پر بیٹھ جائیں اور سامنے ایک گلاس پانی کا رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ڈاکٹر ہما کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ خوشخبری حقیقت میں بہت بڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا دل بہت مضبوط ہے، اس کی ٹینشن مت لو۔ میری نازک پٹھانی ڈاکٹر، تم ڈاکٹر شاہزیب کو بہت ہلکے میں لے رہی ہو۔ ڈاکٹر شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک کو رگڑا۔ یہ ڈاکٹر شاہزیب کا پرسنل روم تھا، اس لیے وہ پیار سے کچھ ایسے خوبصورت پل آپس میں گزار لیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب سوچ لیجئے، پھر نہ کہیے گا کہ میں نے آگاہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہما نے آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جسے دیکھ کر شاہزیب سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسی کیا بات ہے جس کو لے کر ڈاکٹر ہما اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ سوچ لیا؟ اگر اسے زیادہ تنگ کرو گی ہما، سوچ لو تمہارا خان یہیں پر بگڑ جائے گا اور تمہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تنگ مت کرو، اس سے پہلے میں تمہاری سانسیں بند کر دوں۔ مجھے بتاؤ ایسی کیا خوشخبری ہے جس کی وجہ سے میری پیاری بیوی اتنی خوش ہے؟ ڈاکٹر ہما نے آہ کی آواز نکالتے ہوئے سسکی بھری تھی کیونکہ ڈاکٹر شاہزیب کے ہاتھوں کو سکون آنا مشکل سی بات تھی۔ اس وقت ہاتھوں پر سختی کی شدت کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ بے اختیار سسک پڑی تھی۔ شاہزیب، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہیں بھی کبھی بھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی تو اپنے ہاتھوں کو سمجھا کر رکھا کریں، یہ ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر ہما نے ناراضگی اور ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ خاص شوخی بھی تھی، جیسے وہ ڈاکٹر شاہزیب کی حرکتوں کو بے حد محفوظ ہو کر مگر پھر بھی انہیں ہدایات دے رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما کے لیے شاہزیب کا یہ انداز کچھ نیا نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کی اس کی سعادت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ہر بار تمہیں بتانا پڑتا ہے یہ میرا پرائیویٹ روم ہے اور بیوی میری اپنی ہے، تو میرے خیال سے یہاں پر میرے ہاتھ کھلے عام بے باکیاں دکھا سکتے ہیں۔ تم خوشخبری بتاؤ۔ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈاکٹر شاہزیب کے سخت ہاتھ نازک دھڑکنوں کے اطراف میں سختیاں دکھاتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر چکے تھے۔ شاہزیب پلیز رحم کیا کریں۔ وہ ایک بار پھر سے سسکتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آجزانہ لہجے میں بولی۔ اس کے لفظوں میں ایک
गहरा दर्द और बेपनाह मोहब्बत की शिद्दत थी। शाहजेब के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और इसके अंदर की बेचैनी को शिद्दत से महसूस करता हुआ उसकी आंखों में डूब रहा था। और इसके अंदर की बेचैनी को शिद्दत से महसूस करता हुआ उसकी आंखों में डूब रहा था। हुमा, मैं इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा सब्र मेरे अंदर है ही नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे इतने करीब होकर कंट्रोल खोने लगता हूँ। बेहतर यही है कि खुशखबरी सुनाओ, वरना तुम वापस अपने मरीजों के पास इमरजेंसी में चली जाओ। कहीं ये ना हो मैं तुम्हारी सांसों पर हावी हो जाऊं और तुम्हारे मरीज तुम्हें ढूंढते रह जाएं। शाहजेब कल से नाइट ड्यूटी पर था और इस वक्त हुमा का करीब होना रूम में पुरसुकून और तन्हाई का माहौल डॉक्टर शाहजेब के अंदर तूफान की शिद्दत भड़का रहा था। इसकी नज़रें हुमा की आंखों में गुम थी और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो हुमा की जानिब बढ़ते हुए इसकी आंखों में कुछ खास देख रहा था। वो कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज निकल नहीं रहे थे। हुमा, आप तुम्हारे मुंह से वो खुशखबरी सुनना चाहता हूँ जिसका मैंने किया है। शाहज़ेब की आवाज़ में संजीदगी और मोहब्बत की शिद्दत दिखाई दे रही थी। कहीं न कहीं शाहज़ेब को अंदाज़ा हो चुका था कि हुमा इसे कौन-सी खुशखबरी सुनाने वाली है। बस वो इसके मुँह से सुनना चाहता था। वो जानता था कि हुमा की आँखों में एक ख़ास चमक है, जो इस बात की गवाही दे रही है कि इसे कुछ ख़ास होने वाला है। वो उसकी नज़रें हुमा पर मरकूज़ थीं। शाहज़ेब, आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। डॉक्टर हुमा ने ये अल्फ़ाज़ गहराई से महसूस करते हुए, एक गहरी साँस लेते हुए कहे थे। इसके चेहरे पर खुशी और हिचकिचाहट की झलक थी। वो इस लम्हे को मुकम्मल तौर पर महसूस कर रही थी। इसके अंदर थोड़ी-सी बेचैनी भी थी। इसकी आंखों में शौक और हैरत की एक मिक्स फीलिंग थी और वो शाहजेब के रद्द अमल का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। वो जानती थी कि ये खबर जितनी इसे खुशी दे रही है, इतनी ही खुशी शाहजेब भी महसूस करेगा। शाहजेब इस खबर का कब से इंतज़ार कर रहा था, इस बात से वो बखूबी बेखबर नहीं थी। मगर फिर भी एक बीवी के लिए बहुत अहम होता है जब इसका शौहर इसकी प्रेगनेंसी पर अपनी खुशी का वाज़ेह इज़हार करता है। बीवी का दिल खुशी से लबरेज होता है। मगर जब शौहर बाप बनने की खुशी का इज़हार करते हुए बीवी को मोहब्बत से अपनी बाहों में लेता है, मोहब्बत से माथे पर लब रख कर चूम देता है, तो बीवी को लगता है कि वो सच में अपने शौहर को बहुत बड़ी खुशी दे रही है। बाज़ बदबख्त मर्द जो ये समझते हैं कि बाप बनना इनका हक है और अगर वो बाप बन रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ उनकी ही काबिलियत है। ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल सोच रखने वाले मर्द कभी समझ नहीं पाते कि ऐसे लम्हात में बीवी क्या चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी बीवी जो इतनी एक्साइटेड है वो मुझे यही खुशखबरी देने आई है। शाहजेब ने डॉक्टर हुमा को प्यार से अपनी बाहों में उठाकर गले से लगा रखा था। डॉक्टर शाहजेब एक पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर था, जिसकी सोच और जहानत काबिल तारीफ थी। बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे लम्हात में बीवी को एतमाद में कैसे लिया जाता है। बेशक वो बहुत खुश था, मगर अपनी खुशी को मुकम्मल तौर पर वो डॉक्टर हुमा पर जाहिर कर रहा था। डॉक्टर हुमा बच्चों की तरह शाहजेब ने कमर पर हाथ रखे हुए उठा रखा था। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डॉक्टर शाहजेब ने इस बात को समझते हुए इसकी प्रेगनेंसी का मुकम्मल ख्याल रखते हुए इसे आराम से कुर्सी पर बिठा दिया था। इसे पुरसुकून अंदाज से बिठाते हुए खुद एड़ियों के बल इसके पास ज़मीन पर बैठते हुए इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर लबों से लगाते इसे गोद में सर रखते हुए वो इसका शुक्रगुजार हो रहा था। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाहजेब ने प्यार से इसके हाथों को चूमते हुए इसके इसके स्लिम स्मार्ट पेट पर हाथ रखते हुए लब वहां रखे थे। इस लम्हे में एक बार वो फिर से माँ बाप बनने की खुशी को गहराई से महसूस कर रहे थे। दोनों ने के दिल में एक ही दुआ थी कि इनकी दो बेटियां थी और अब खुदा इनको बेटा अता फरमा दे। ये लम्हा बेहद खूबसूरत और जज्बात से भरपूर था, जैसे हर दुआ, हर ख्वाहिश और हर एहसास एक दूसरे के में गदमद होकर इन दोनों के दिलों में जुड़ रहा हो था। और हुमा और शाहजेब दोनों इस लम्हे की कदर कर रहे थे, क्योंकि ये खुशी इनके रिश्ते और ज़िंदगी का एक नया बाब था। रोमांच और मीर इब्राहिम के हमरा मालदीव के एक खूबसूरत जजीरे पर पहुंच चुके थे। यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत और हसीन था। नीले पानी की लहरें हल्की सी सरसराहट के साथ साहिल से टकरा रही थी। आसमान पर नरम रुई के जैसे बादल तैर रहे थे। सूरज की रोशनी चमकदार पानियों में गहरे नीले और हल्के सरसब्ज रंग में बिखर रही थी। जजीरे के चारों तरफ सरसब्ज दरख्तों का जाल बिछा था, जिनमें बुलंद पाम के दरख्त और रंग बिरंगे फूल हर तरफ चमक रहे थे। दूर से समंदर की कश्तियों में मध्यम लहरें दिखाई दे रही थी और साहिल के किनारे नरम रेत के जर्रात चमक रहे थे। हवा में नमकीन पानी खुशबू थी, जो समंदर की ताजगी को बयान कर रही थी। रोमांचा और मीरब के कदम साहिल पर पड़ते ही रेत नरम और ठंडी महसूस हो रही थी। इस वक्त वो दुनिया के तमाम फिक्रों से आज़ाद होकर इस खूबसूरत मकाम पर पहुंच चुके थे। आस पास सुकून ही सुकून था।
पहाड़ियों के दामन में छुपे हुए छोटे छोटे खूबसूरत कमरे जो कि लग्जरी रेजर्वर्ट्स में तब्दील हो चुके थे, इनकी आरइश और कुदरती हुस्न के साथ मिलकर एक खूबसूरत जैसे मंजर की तख्लीक कर रहे थे। यहाँ का एक मंजर एक नया और दिलकश पुरस्कार सरप्राइज पेश कर रहा था। रायन सफर से काफी थका हुआ था। सुबह इसे उठाया तो इसका उठने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए रोमान शाह ने इसे अपने साथ नहीं लेकर आया था। वो रूम में आराम कर रहा था। रोमान शाह और मीरब होटल से ज़्यादा दूर नहीं थे, सिर्फ 2 मिनट में वो होटल पहुंच सकते थे। रोमान शाह ने राइम की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई एहतियाती तदाबीर की थी। दरवाजे की सिक्योरिटी गार्ड्स की जांच बहुत एहतियात से की थी ताकि किसी किस्म की मुश्किल का सामना न हो और राइम की हिफाजत में कोई कसर न रह जाए। शाह ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए हर पहलू का ख्याल रखा था। ये यकीनी बनाना था कि बेसफर इनका सफ़र बेहद बेफिक्र हो। रोमान शाह के लिए मीरब और राइम की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं था। जिंदगी के इतने सख्त पहलू वो देख चुका था, अब हिम्मत नहीं थी अपने प्यारों को तकलीफ में देखने की। छोटी सी जिंदगी में रोमान शाह अपनी हिम्मत और जब्त से ज्यादा दुख देख चुका था। चट्टान के जैसा मजबूत शख्स बिखर गया था इन लम्हों में जब मीरब और राइम इसके साथ नहीं थे। अब शाह अपने प्यारे इर्द गिर्द ऐसा महसूस ऐसा मजबूत हिसार कायम किए हुए था कि ना तो वो किसी पर भरोसा करना चाहता था और ना ही इनकी हिफाजत किसी और पर छोड़ना चाहता था। ऐसा तो इसने पहले भी नहीं किया था, मगर फिर भी कुछ करीबी लोगों ने ऐसा धोखा दिया था कि शाह अब किसी पर चाह कर भी यकीन नहीं कर सकता था। इसका यकीन न करना इस वक्त इसकी जाने शाह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा का मूड इस वक्त सख्त खराब था। वो बज़ाहिर तो रोमान शाह के साथ खामोश चल रही थी, मगर वो शाह से सख्त नाराज थी। ये बात शाह बहुत अच्छी तरह से जानता था। मालदीव पे खूबसूरत जजीरे पर नीले पानियों का मंजर और नरम रेत इनके कदमों तले बिखरी हुई थी। शाह मीरब का हाथ पकड़े साहिल पर चल रहा था। मीरब की खामोश नजरें जमीन पर जमी हुई थी। इसके दिल में कोई तकलीफ थी जिसका इजहार इसके चेहरे पर वाज़ेह था। शाह इसकी नाराजगी को महसूस कर रहा था, लेकिन वो खामोश था। वक्त की ये नरम लहर दोनों के दरमियान की दूरी को मिटाने की कोशिश कर रही थी। शाह के सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़ी दूरी पर खड़े हुए इनकी हिफाजत कर रहे थे। इनकी नजरें चारों इतराफ में घूम रही थी। जाने शाह, तुम्हारी ये खामोशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानती हो फिर इस खामोशी की वजह क्या? मुझे तकलीफ देना है? शाह ने बहुत नर्म लहजे से कहा। मैं कौन होती हूँ आपको तकलीफ पहुंचाने वाली? आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मेरी क्या औकात है जो मैं आपको तकलीफ दूं? मीरा के अल्फाज काफी सख्त थे, जो कि रोमान शाह को बहुत नागवार गुजरे थे। इस बात का क्या मतलब है? शाह ने सर्द निगाहों से देखते हुए फौरन से रुककर पूछा। दोनों एक साथ चल रहे थे, मगर मीरब की इस बात पर शाह की आंखों में शदीद गुस्सा उतर आया था। इसने मीरब का हाथ पकड़ा था और फौरन से रुक गया था। मीरब खामोशी से समंदर की लहरों को देख रही थी। मीरब, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम मेरे बनाए हुए कायदे कानून की हदूद से बाहर निकलोगी और मैं बर्दाश्त करूँगा। तुम्हारा जवाब न देना तुम बदतमीज़ी के ज़िम्रे में आता है और रोमान शाह बदतमीज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। रोमान शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। इसके अंदाज से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो किसी सूरत भी किसी से इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मीरब, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपकी बादशाह की आवाज़ पहले से ज़्यादा ऊंची और गुस्से से भरी हुई थी। इसके लहजे में इतनी शिद्दत थी कि जैसे हर लफ्ज़ तलवार की तरह निकल रहा हो। रोमान शाह का गुस्सा इसके चेहरे पर वाज़ेह था और वो इसकी आंखों में ऐसी जलन थी कि जो बता रही थी कि वो बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। मीरब का ना बोलना रोमान शाह के नज़दीक बदतमीजी थी। मीरब शाह की आवाज़ से डर गई थी। इसकी आंखों में खौफ की गहरी झलक उभरी थी। इसके चेहरे पर यकदम बेयकीनी और सरासमगी फैल गई। इसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। एक लम्हे को मीरब ने शाह की जानिब नजरें उठाकर देखा था। शाह की आंखों में सुर्खी और गुस्से की शिद्दत देख रही थी। इसका दिल दहल गया था। रोमान शाह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अब मीरब से बोला नहीं जाएगा, क्योंकि वो सच में शाह के इस अंदाज से बहुत डरती थी। शाह मीरब पर गुस्सा नहीं करता था, मगर इस वक्त शाह को जिस बात पर गुस्सा था वो अब मीरब की समझ में शायद आने लगी थी। शाह के गुस्से में शिद्दत को देखते हुए मीरब के हलक से थूक नीचे नहीं उतर रही थी। शाह का शदीद गुस्सा इसके चेहरे से वाज़ेह हो रहा था। सॉरी शाह, आपको तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था। मीरब बड़ी मुश्किल से बोली थी। इसके लफ्ज़ हलक में अटक रहे थे। वो कुछ और कहना चाहती थी, मगर शाह के गुस्से से डरे हुए बस वो इतना ही बोल सकी थी। तो फिर इन अल्फाजों का और बेफजूल में अपना मूड खराब करने का मकसद क्या था? शाह ने सस्पेंस देते हुए लफ्ज़ों को चबाकर कहा।
शाह का अंदाज शदीद गुस्से और मायूसी से भरा हुआ था। इसकी आवाज़ में एक जतल था, जैसे वो मीरब की गैर ज़रूरी खामोशी और रद्द अमल को शाह बहुत अच्छी तरह से जान चुका था, मगर मीरब के मुंह से सुनना चाहता था कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रहा है। तुम इस 2 टके के अलीज़े के लिए मुझसे नाराज़ हो? यही अहमियत है मेरी? शाह ने गुस्से और मायूसी के साथ कहा। मीरब की खामोशी और झुकी हुई नज़रों को देखकर शाह ने खुद से बात जारी रखी। शाह की आंखों में मीरब के लिए शदीद गुस्सा और शिकायत थी। शाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये सच है कि अलीज़े की वजह से आपसे नाराज़ हूँ। आपने फ़ज़ूल में इसे यहाँ से भेज दिया है, मीरब ने नरम लहजे में कहा। लेकिन इसके अल्फाजों में दुख और नाराज़गी छुपी हुई थी। रोमान शाह कोई भी काम फ़ज़ूल में नहीं करता। जानिशा, तुम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। रोमान शाह ने गुस्से से अपनी बात मुकम्मल की। इसका लहजा इतना सख्त और एटीट्यूड से भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी एतराज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा और चेहरे पर एक अनकही तंबीह थी कि वो अपने फैसले पर पुख्ता है। अगर मैंने इस अरीजे को तुम लोगों से दूर किया है तो आखिर कुछ तो सोचा होगा ना, या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हो कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। रोमान शाह का गुस्सा इस वक्त अरूज पर था। बहुत सालों बाद मीरब ने शाह का ये रूप देखा था। वो सच में इस वक्त डरी सहमी खड़ी थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने शाह के साथ नाराज होकर बहुत गलत किया है। मीरब अब एहसास होने लगा मीरब अब एहसास होने का कोई फ़ायदा नहीं था। सामने खड़ा शख्स इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस बात का मान और गरूर हमेशा मीरब के हवासों पर तारी रहता था। मगर मीरब इस बात से भी वाकिफ थी कि रोमान शाह का गुस्सा बहुत जानलेवा है। मीरब शाह का गुस्सा बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती थी। इस शख्स के सामने तो बड़े बड़े की हेकड़ी टूट जाती थी। मीरब किस खेत की मूली थी? शाह, सॉरी। मीरब ने नज़र झुकाए हुए कम आवाज़ में कहा। मुझे सॉरी की ज़रूरत नहीं है। शाह को कभी भी तुम्हारे मुंह से सॉरी कहलवाना, अपने सामने बेबस करना अच्छा नहीं लगता। तुम सिर्फ मुझे मेरी मोहब्बत की शिद्दतों की में कमज़ोर पड़कर बेबस होती हुई अच्छी लगती हो, वरना तुम्हें हमेशा शाह मगरूर देखना चाहता है। मीरब बहुत डर चुकी थी। इस बात का शाह को अंदाज़ा था। शाह ने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से ज़ब्त करते हुए नरमी इख्तियार की थी। जानता था कि इस लड़की को गुस्से में आकर डरा कर या इस पर चीख कर वो खुद को तकलीफ पहुंचाने का सबब बनेगा। इसलिए बमुश्किल सही मगर अपने लबो लहजे को नरम कर चुका था। शाह की नरमी से इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए इसका चेहरा ऊपर कर गया था। इसकी खूबसूरत सहमी हुई नम आंखों में शाह के गुस्से का खौफ वाज़ेह था। शाह ने इस खौफ को महसूस करते हुए इसे अपनी मजबूत बाहों की हिरासत में लिए इसे अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास दिला रहा था। चंद लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान छाई रही, मगर इस खामोशी में जज्बात और मोहब्बत का एक तूफान दोनों को अपनी लपेट में ले चुका था। जानशाह, शाह की जान। शाह ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए मीरब के गिर्द बाहों की हिरासत को और मजबूत कर लिया। मीरब शाह के मजबूत सीने में मासूम बच्चे की तरह सर छुपाए हुए छुप रही थी। शाह के दिल में बेचैनी का एक तूफान मच रहा था। तुम्हें कैसे बताऊं कि इस वक्त मेरा दिल अनजाने खतरे से के खौफ से कितना बेचैन है। मैं तुम दोनों के इर्द गिर्द किसी ऐसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस पर मुझे रत्ती बराबर भी शक हो। शाह के दिमाग में ख्यालात मुसलसल गर्दिश कर रहे थे। पता नहीं क्यों, मगर अलीज़े से हर वक्त मुझे एक अनजान से खतरे की बू आती थी। ये सोचे दिल को जकड़ रही थी कि और शाह ने बेख्तियार मीरब को अपनी मजबूत बाहों के हिसार में और भी मजबूती से जकड़ लिया था। इसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए खुद एक दीवार बन गया हूँ। शाह की बेख्याली और सोचों का तसलसल इस वक्त टूटा जब मीरब ने सिसक कर शाह को एहसास दिलाया कि हिरासत ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो चुकी है। क्या क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ रखा है था कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, वो बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोल रही थी। मेरी पकड़ तो हमेशा ही से ही ऐसी थी। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी जान को मुश्किल में डालना। शाह ने कान के करीब लब रखते हुए सरगोशी की। मीरब शर्म से लाल होते हुए मुस्कुरा पड़ी थी। शाह, अब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? मीरब ने मोहब्बत भरी नज़रों से शाह की तरफ देखते हुए अली सीने पर हाथ रखकर धीरे से पूछा। अगर मैं कहूँ कि नाराज़ हूँ तो ऐसी सूरत में तुम क्या करोगी? शाह ने शरारती नज़रों से देखते हुए कहा। इसकी आंखों में छुपे जज्बातों के तूफान ने मीरब को बेहद बेचैन कर दिया था। वो शर्म से नज़रें झुकाकर रह गई थी। इसके गाल हल्के सुर्ख हो चुके थे। फिर मैं आपको मना लूँगी, क्योंकि मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती। जब आप मुझसे नाराज़ होते हैं तो मुझे पूरी दुनिया वीरान लगती है, मीरब ने आहिस्ता से कहा था। इसके लहजे की मासूमियत और मोहब्बत भरे अंदाज से
انداز نے شاہ کے دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے ہر لفظ نے شاہ کے دل پر گہری ضرب لگائی ہو اور وہ اپنی تمام فکر بھول کر صرف میرب کی باتوں میں کھو گیا ہو۔ میری جان، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے یہ الفاظ میرے دل کو کس قدر ہلا دیتے ہیں؟ شاہ نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں جذبات کا ایسا طوفان تھا جو الفاظ سے باہر چھلک رہا تھا۔ شاہ کی گہری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرب کو بے حد بے بس کر رہا تھا۔ شاہ کا خوبصورت چہرہ، گہری شفاف آنکھیں میرب کی محبت کی شدت کو بڑھا رہی تھی۔ اگر میرب شاہ کی کمزوری تھی تو شاہ بھی میرب کی کمزوری تھا۔ شاہ کی نزدیکیاں میرب کو بھی بے چین کر دیتی تھی۔ شاہ کی غربت میں میرب دنیا جہاں کو بھول جاتی تھی۔ میری جان، ایسے مت دیکھو ورنہ یہیں بے قابو ہو کر تمہاری مخملی پنکھڑیاں کھا جاؤں گا۔ شاہ نے میرب کو اپنی جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر خماری سے کہا۔ میرب نے شرما کر نظریں سمندر کی لہروں پر مرکوز کر لی تھی۔ میری جان، بعد میں شرما لینا، اپنا منہ ٹھیک کرو، میں تمہیں مالدیپ کا مشہور ناشتہ کرواتا ہوں۔ شاہ میرب کا ہاتھ پکڑ کر ناشتہ پوائنٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اچھا، یہاں کا مشہور ناشتہ کیا ہے؟ میرب نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا پتا؟ یہاں کا مشہور ڈھابا اسٹائل پراٹھے اور چائے ہے، ساتھ میں مچھلی کے کباب اور ہاں، مالدیپ کی روایتی روٹی بھی ہے۔ شاہ بڑی دلچسپی سے میرب کو یہاں کے ٹریڈیشنل ناشتے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرب کے دماغ سے اپنے غصے کا عکس ختم کرنا چاہتا تھا۔ میرب کے لبوں کی مسکراہٹ شاہ کا قیمتی سرمایہ تھا، تو شاہ اپنے سرمایہ میں کٹوتی کیسے ہونے دیتا؟ شاہ، یہ سب تو ہمیں پاکستان کے دیسی کھانوں کی یاد دلائے گا۔ میرب ڈھابے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے دیسی کھانوں کی یاد دلائے گا، بس یہاں تھوڑا مالدیپ کا ٹچ ہوگا۔ شاہ، مجھے یہاں کے بارے میں اور بتائیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ میرب تجسس سے پوچھ رہی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا یہاں کے بارے میں جاننا۔ شاہ سے مالدیپ کی ثقافت اور یہاں کے مشہور کھانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ میرب کے دماغ سے شاہ کے غصے کا عکس غائب ہونے لگا تھا۔ وہ غور سے شاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ میرب، مالدیپ کے ہر ذائقہ کچھ ذائقہ ہے، ذائقہ خاص ہے۔ یہاں کا مشہور ناشتہ ماس ہونی تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ ٹونا مچھلی، ناریل، پیاز اور لیموں کا امتزاج آپ کو ذائقے کا نیا تجربہ دے گا۔ ہمارا ٹیسٹ ان کا ٹیسٹ بہت مختلف ہے، مگر میرے خیال سے نئے نئے تجربے کرنے چاہیے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہاں کی گورے جو ایک طرح کی مٹھائی ہے جو خاص میٹھا اور لذیذ ہے، ناریل اور چینی کا یہ مکسچر تمہیں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ شاہ میرب کو یہاں کی مشہور جگہ اور کھانوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ شاہ نے یہاں کے ثقافت اور نیچرل خوبصورت کے بارے میں میرب کو بہت کچھ بتایا تھا۔ میرب ناشتہ انجوائے کرتے ہوئے مالدیپ کے بارے میں پوری جنرل نالج حاصل کر رہی تھی۔ میرب پوری طرح سے شاہ کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، مگر اس کا شاہ اب بھی میرب کے چہرے کو غور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے غصے کا کوئی تھوڑا سا اثر بھی باقی تو نہیں ہے۔ کتنی خوش قسمت ہے یہ لڑکی جس پر یہ خوبصورت شہزادہ جان وارتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت میں ایسے شہزادے ملتے ہیں تو بالکل شہزادے مل جاتے ہیں۔ جب نصیب اچھے ہوتے ہیں تو ظاہری خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو شہزادے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے سچی اور خالص محبت جو اس سب کو سب سے منفرد اور خاص بناتی ہے۔ شوہر کی محبت سچی اور خالص ہو تو بیوی کو شوہر کی ناراضگی بے چین کر دیتی ہے۔ آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت پر غصہ کر کے، اس پر چلا کر اور مار کر اسے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے غافل مردوں کو ایسے بتایا جائے کہ عورت مار اور غصے سے نہیں ڈرتی، عورت ڈرتی ہے تو اپنے شوہر سے جچتی، سچی محبت کو کھو دینے سے۔ اگر مرد سچ میں مرد کہلانے کے لائق ہے تو اس کی محبت میں وہ تپش اور شدت ہونی چاہیے کہ جب وہ روٹھے تو عورت کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو۔ عورت اپنے شوہر کو منانے کے لیے اپنی ہر انا اور ہر دیوار کو توڑ دی۔ شوہر کی محبت میں ایسی کشش ہونی چاہیے کہ عورت میگنٹ کی طرح اس کی جانب کھینچتی چلے جائے۔ ایسی محبت، ایسا عشق ہزاروں میں کوئی ایک کر سکتا ہے، اور شاید وہ ایک نعمان شاہ کہلاتا ہے۔ کتنا پرفیکٹ انسان ہے جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے اور جنون کی حد تک عشق بھی کرتا ہے، اس کا محافظ بن کر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، چٹان جیسا پنجابی مرد بن کر اپنا ایٹیٹیوڈ بھی برقرار رکھتا ہے۔ لیے وہ محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ خالص اور سچی رہتی ہے۔ یہی ہے رومان شاہ کا انداز، جہاں طاقت بھی ہے، محبت کی شدت بھی، اور دونوں کا حسین امتزاج۔ کبھی بھی کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ بڑھتا اور پگھلتا رہتا ہے، جیسے کوئی جذبہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اگر شعر کی زبان میں
اس کو खूबसूरती में ढाला जाए तो शायद शायर इसकी मोहब्बत में ये कहता है, मर्द बन के चाहत की ऐसी मिसाल छोड़ गया, रुमान शाह के मोहब्बत में जो रंग भरे हैं वो कमाल छोड़ गया। तशरीह, इस शेर में रुमान शाह की शख्सियत को बयान किया गया है जो ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि अपनी मोहब्बत में इतना शिद्दत और जज्बा रखता है कि वो अपनी बीवी के लिए हर हद को अबूर कर सकता है। ये शेर इस बात को जाहिर करता है कि रुमान शाह की मोहब्बत में जो रंग भरे गए हैं वो किसी भी आम मोहब्बत से बालातर हैं। वो इनका असर हर लम्हा दिलों में महसूस होता है। महर महरमा और मुतहशम दोनों ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में मलबूस एक दूसरे के साथ खड़े थे। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पर दो खूबसूरत सितारे चमक रहे हों। दोनों शरारती बच्चों के चेहरों पर बला की मासूमियत थी। अहमद गाड़ी के पास खड़ा अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। इसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए मोहब्बत भरा इस्तराब था। स्याह रंग की चमकती हुई गाड़ी के करीब हल्की सी हवा चल रही थी जो दरख्तों के पत्तों को सरसराती हुई गुजर रही थी। दिसंबर की सर्दी में मौसम काफ़ी खुशगवार था। कराची में दिसंबर का मौसम काफ़ी खूबसूरत और फ्रेश होता है। सर्दी के साथ साथ समंदर की हल्की हल्की सी हवाएं मौसम को और भी दिलकश बना देती हैं। मुहर्रमा और मुतहशम भागते हुए आकर गाड़ी में बैठ चुके थे। अहमद बज़ाहिर बच्चों की तो बच्चों से तो खुश था मगर इसका मूड सख्त खराब था। इसका रीज़न माही थी। भाई, आपको माही बीवी अंदर बुला रही हैं। अहमद गाड़ी में बैठने वाला था कि मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया। अहमद को इस वक्त माही पर गुस्सा आ रहा था। वो अंदर माही के पास नहीं जाना चाहता था मगर मुलाजमों के सामने अपनी ज़ाती जज्बात जाहिर करना इसे बिल्कुल नापसंद था। इसलिए खामोशी से झुंझलाते हुए चेहरे के साथ वो गाड़ी से उतरकर अंदर जा चुका था। क्या प्रॉब्लम है? अभी रूम से ही गया हूँ। अब तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो तुम्हें फौरन बुलाना पड़ा? अहमद रूम में कदम रखते ही झुंझलाहट और गुस्से से बोला। इससे पहले कि अहमद माही पर मजीद गुस्सा करता, माही जो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए इसके रूम में आने की मुंतजर थी, लाइट ग्रे कलर के का ट्राउज़र और शर्ट पहने हुए खड़ी थी। ये नाइट सूट था जो इसने अभी तक चेंज नहीं किया था। इसने मुस्कुराती हुई नज़रों से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। अहमद, जो कि अब तक अपने गुस्से को थामने की कोशिश कर रहा था, अपनी एक आईब्रो को उठा के इसके इशारे का मतलब पूछ रहा था। इसके चेहरे पर झुंझलाहट और बेचैनी झलक रही थी, जबकि माही की मुस्कुराहट में बेहद नरमी और सुकून था। वो जानती थी कि इस लम्हे का तासुर दोनों के दरमियान कशीदगी खत्म कर जाएगा। माही एक एक कदम उठाते हुए इसके करीब आ रही थी, जैसे वो जानती हो कि इसका हर कदम अहमद के गुस्से को कम कर रहा है। इसकी आंखों में नरम और मोहब्बत भरी शरारत झलक रही थी। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो अहमद के दिल की हर अधूरी बात समझ रही हो। माही, मुझे जाने दो, बच्चे लेट हो रहे हैं। अहमद अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश में हैंडल पर हाथ रख चुका था। इसकी आवाज़ में गुस्सा था मगर इसके अंदर की बेचैनी भी साफ ज़ाहिर हो रही थी। वो जानता था कि वो माही से बात किए बगैर नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त इसका दिमाग रात वाले गुस्से से भरा हुआ था। बच्चे लेट नहीं होंगे? माही ने एक अदा से कहा। मतलब? अहमद ने मतलाशी नज़रों से माही को देखा और पूछा। मतलब ये कि बच्चे अपनी दादों और ड्राइवर के साथ स्कूल जा चुके हैं। मैंने ड्राइवर से कह दिया था कि वो बच्चों को ले जाएं। माही मुस्कुराकर अहमद को दरवाजे से पीछे धकेलती हुई शरारती अंदाज से कहा, जो इसके लहजे में अजीब सी कशिश थी। अहमद के गुस्से को कम कर रही थी। अहमद की आंखों में एक लम्हे के लिए सुकून आया और खामोशी से माही की तरफ देख रहा था। ये तो तुम्हारी प्लानिंग थी? अहमद ने माही की तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरानी और हल्का सा गुस्सा था। हाँ, ये मेरी प्लानिंग थी, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। माही पर अहमद के गुस्से का जरा भी असर नहीं हो था, क्योंकि वो जानती थी अहमद को वो मना लेगी। अहमद इससे बहुत इसे अहमद पर यकीन था। माही अहमद से बहुत छोटी थी, इसलिए इसकी हरकतें बहुत बचकाना और मासूम थी। माही बेहद शरारत थी मगर इसकी शरारतों में इसकी मासूमियत छुपी हुई थी। अहमद की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी मगर अगले ही लम्हे इसने अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया था। इस वक्त वो माही पर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करना चाहता था। तो ठीक है, बच्चे जा चुके हैं, तो मुझे ऑफिस जाना है और मैं तुम्हारी किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अमर ने इसके दोनों हाथ नरमी से गले से निकालते हुए दो टोक अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ में थोड़ी सख्ती और गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर एक मोहब्बत की झलक वाज़ेह थी। आप ऑफिस नहीं जा सकते। माही दोबारा से इसके गले में बाजू डाल चुकी थी। आप ये झूठी मोहब्बत जताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना तौहीन मेरे मोहब्बत भरे जज्बात की तुमने की थी वो तुम कर चुकी हो। मेरी मोहब्बत सच्ची है और आपको इस पर यकीन करना होगा। माही की आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि इसके अल्फाज का असर फौरी तौर पर अहमद पर हुआ था। अहमद ने माही के हाथों में एक अजीब सी हरारत महसूस की थी, जैसे इसके जिस्म में हर नस में मोहब्बत की गर्मी दौड़ रही हो। वो अपनी मोहब्बत को इस पर साबित करने की कोशिश कर रही थी।
माही ने प्यार भरी गहरी नजरों से इसे देखते हुए बगैर किसी हिचकिचाहट के अहमद को बेड की जानिब धकेल दिया। अहमद माही को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, इसलिए माही अहमद से जरा सा भी घबराई नहीं थी। अहमद का चेहरा जो कुछ देर पहले गुस्से से लाल था, अब माही की कुर्बत से लाल हो रहा था। इसके दिल की धड़कन तेज थी। वो माही की मौजूदगी और इसकी कुर्बत में पुरसुकून होने लगा था। माही का हर लम्स जैसे अहमद को अपने अंदर घेर रहा था। इसके हर लफ्ज में एक अजीब सी ताकत थी जो इसकी मोहब्बत और अहमद के दिल तक पहुंचा रही थी। माही, मुझे जाने दो, मैं लेट हो जाऊंगा। आवाज में जाने की कोई शिद्दत आवाज में जाने की कोई शिद्दत नहीं थी, बस एक नरम दरख्वास्त थी। दरख्वास्त ऐसी थी कि वो खुद भी चाहता हो कि इसे रोक लिया जाए। तो जाए, रोका किसने है? इसकी आवाज़ में हुनर था, लेकिन आंखों में ऐसी खामोशी थी जो दिल की गहराइयों तक पहुंच रही थी। जैसे वो चाहती हो कि वो रुक जाए, लेकिन वो गुरूर और मोहब्बत का पेचीदा इंतजार जिसके अल्फाज में था। मेरे पेट से हनूज बच्चों की तरह बंदर बनकर ऊपर बैठ जाती हूँ, और अब जाऊं कैसे? एम्बर की आवाज़ में हंसी और झुंझलाहट का मिक्सचर था। वो माही के बेबाक अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। माही बच्चों की तरह इसके पेट पर दोनों तरफ टांगे किए बैठ गई थी। माही की बेबाक बोल्ड अंदाज और इसके नाजुक वजूद की गर्मी से घिरा हुआ, वो मुकम्मल तौर पर अपना गुस्सा भूल चुका था। वो दोनों बाजू बाजू पर फैलाए हुए लेटा था। वक्त तो वैसे रुक गया था, हर लम्हा इसके दिल की धड़कन और हम आहंग हो रहा था। अब बताएं, आप मुझसे नाराज हैं? इसके चेहरे पर झुकते हुए माही ने नरमी से पूछा। इसके घने रेशमी बाल अहमद के चेहरे पर बिखरे थे, और इसकी नरमाहटों की खुशबू इसकी आंखों में एक मदहोशी की लहर दौड़ रही थी। जैसे हर वो लम्हा जज्बातों की तपिश में गर्क हो रहा हो। इसके दिल की धड़कन में सिर्फ माही का नाम सुनाई दे रहा था। प्लीज माही, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, अहमद ने कहा, मगर इसकी आवाज में ऐसी मायूसी और दिल की बेचैनी थी कि जैसे वो जानबूझकर वहां से जाने नहीं चाह रहा था। जाकर दिखाएं, मैं भी तो देखूं कैसे जाते हैं। माही ने अपनी शर्ट के दामन पर हाथ रखते हुए ऊपर को ले जाकर शर्ट को बेड पर उछाल दिया था। ब्लैक कलर का खूबसूरत ब्लाउज इसकी मखमली रनाइयों पर बहुत दिलकश लग रहा था। अहमद की आंखें खुमारी से लाल होती इसके अंदर उठते जज्बात के तूफान को जाहिर कर रही थी। बेख्तियार अहमद ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रखते हुए पूरी शिद्दत से इसे अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ते हुए करवट लेते हुए उस पर घटा बनकर छाने लगा था। जज्बात के शोर पे बेकाबू होकर वो अपना गुस्सा भूल चुका था। तुमने रात को जानबूझकर बच्चों को रूम में सुलाया था? अहमद ने सरगोशी करते हुए कान की लो को दांतों की चुभन महसूस करवाई। माही ने सिसकते हुए हाथों की गिरफ्त छुड़वाना चाही थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए बच्चों को सुलाया था। मुझे नहीं पता था आप नाराज हो जाएंगे। कानों की लो पर गर्म लम्स महसूस करते सफाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे बच्चों को दूसरे रूम में छोड़कर आना कोई मुश्किल काम था? मैं तुम्हारे साथ हमेशा शराफत से पेश आता हूँ, मगर तुम बदमाशियां करती हो। अब नाराज किया है तो मना भी तो रही हूँ। जानती हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, जब चाहें मेरे बेचारे बच्चों को रूम से निकाल सकते हैं। वो सिसकते हुए बोल रही थी। अहमद के लबों का नर्म लम्स महसूस करते हुए वो बेखुदी से तड़प रही थी। सच में तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत मासूम हैं। हर रोज तुम लोग मेरे जज्बात को इतनी शिद्दत से मुतजलजल करते हो। अब भी तुम लोग मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत के सदके जाने को दिल चाहता है। प्यार की घटाएं मोहब्बत की मानंद बारिश बनकर इस पर छा चुकी थी, और सरगोशियों में मोहब्बतों की मिलावटें शामिल थे। मखमली बदन की खुशबू अहमद की सांसों की में शिद्दत से महक रही थी। गर्म सांसें एक दूसरे में मिक्स हो रही थी। लबों के करीब से मोहब्बत भरी सरगोशियां हो रही थी। रूम में सांसों की खुशबू और धड़कनों का शोर था। हर लम्हा एक नया और खूबसूरत एहसास बनकर दोनों की सांसों को महका रहा था। फिजा में मोहब्बत की नरम लहर थी। नजर हर लम्स में बेपनाह जज्बात की शिद्दत छुपी हुई थी। इसकी गिरफ्त में मोहब्बत की नरम शिद्दतों को महसूस करते हुए वो खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। पूरी तरह से इसकी कुर्बत में गुम होकर वो खुद को इसकी आगोश में छुपाए हुए था। दोनों एक दूसरे में जज्ब हो गए थे। वो वक्त भी इन दोनों की मौजूदगी के सामने बेमायनी हो चुका था। सब नाराजगी खत्म करो। दोनों मोहब्बत दोनों की दोनों मोहब्बत की हिफाजत में महफूज हो चुके थे। मीर, आप परेशान हैं? मेरा रूम में काफी कॉफी लेकर आई थी, मगर रूम में शामिर को खामोश सोचों में गुम देकर उसने सवाल किया। मीर की जान, मैं परेशान नहीं हूँ और ना ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, वरना इस खूबसूरत चेहरे पर शिकने आ जाएंगी। शामिर ने नरमी से इसके नाजुक कलाई को पकड़कर लबों से लगाकर चूमते हुए मोहब्बत से कहा। शामिर का लहजा और चेहरे के तासुरात बिल्कुल इसकी बात का साथ नहीं दे रहे थे।
وہ جیسے اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن الفاظ اس کی حالت کی عکاسی نہیں کر رہے تھے۔ میر مرہا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب سے اس کی بات رومان شاہ سے ہوئی تھی، وہ مسلسل ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ شاہ کے ساتھ خود بات کر کے اس کی پریشانی کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ گھر کی عورتوں کو پریشان کرنا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا پروفیشن بھی ایسا تھا کہ ہر روز اسے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ تم نے بچوں سے بات کی؟ شاہ میر نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک نرم مگر سنجیدہ سا لہجہ سا انداز شامل تھا۔ وہ جان بوجھ کر سے دھیان کسی اور طرف موڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مرہا اسی بات پر پریشان رہتی تو میر کا راز اور بھی پیچیدہ ہو جاتا۔ مرہا کی پریشانی والے چہرے کو دیکھ کر شاہ میر نے جان بوجھ کر باتوں کا مرکز بچے اس کے بچے بنا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا اپنے بچوں کی باتوں میں الجھ جائے گی اور اس بات کو بھول جائے گی کہ شاہ میر پریشان تھا۔ شاہ میر نے فوراً دل میں عہد کیا تھا کہ وہ گھر آ کر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھے گا تاکہ مرہا پر کچھ حیا نہ ہو۔ جی، بچوں سے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک اور خوش تھے، ہمیں یاد کر رہے تھے۔ مرہا نے خوش ہو کر اپنے بچوں کے بارے میں بتایا۔ اچھا جی، یاد کر رہے تھے؟ ابھی ہمیں آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور جناب ہمیں یاد کر رہے ہیں؟ سکون سے اپنے دادا دادی کے پاس رہیں، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے کے بعد ہی واپس لے کر جاؤں گا۔ ہر وقت مجھے میری بیوی سے دور رکھتے ہیں۔ شاہ میر نے پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ماتھے پر لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ میر اور مرہا آپس میں کافی دیر تک بچوں کی باتیں کرتے رہے، مگر شاہ میر کے دماغ میں رومانچا کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ مرہا وقت پر سو گئی تھی۔ شاہ میر اب شاہ میر بھی اپسٹ تھا، تو اس نے مرہا کا سو جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ شاہ میر رومان شاہ سے بات کرنے کی غرض سے فون لے کر کچھ دیر کے لیے روم سے باہر چلا گیا تھا۔ بابا پلیز، آپ مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ رائم شاہ کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور پورے روم میں رائم کی آوازوں کا شور تھا۔ شاہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہو کر ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ میرب تالیاں بجا کر اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہی تھی۔ میں تم سے جیت جاؤں گا، دیکھ لینا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے۔ شاہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے ویڈیو گیم میں گاڑیوں کو مہارت سے بھگا رہا تھا۔ جی نہیں، آپ میرے بیٹے کو نہیں ہرا سکتے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ میرب جو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کو حوصلہ دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، میں تو بیٹے کی ماں ہوں، میں تو بیٹے کی ماں کو بھی ہرا سکتا ہوں، بیٹا کیا چیز ہے۔ رومان شاہ نے سرگوشی کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی میرب کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے محبت کا احساس دلایا۔ رائم پوری طرح سے اپنی گیم میں مگن تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ شاہ، آپ، میرب نے شرماتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن شاہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہاٹ ہوں، شاہ نے شرارت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کی جھکی نظروں کو اور گہرا کر دیا تھا۔ میرا کس اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ شاہ کے مضبوط ہاتھ نرم لمس کے ساتھ اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں پر اپنا سکون بخش اثر چھوڑ رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے شاہ کے لمس کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی اور ماحول میں ایک گہری خوشی چھا گئی تھی، جسے صرف محبت کی مدھم سرگوشیاں توڑ رہی تھی۔ رائم نے گیم کھیلتے ہوئے پورے روم میں شور مچا رکھا تھا اور اس کی نظریں سامنے لگی ہوئی بڑی سی ایل ای ڈی پر مرکوز تھی۔ روم میں لائٹ بند تھی، جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی سے اسکرین سے چھن کر آ رہی تھی۔ یہ ماحول شاہ کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، خاموشی، مدھم روشنی اور محبت سے بھرا لمحہ جہاں سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق لگ رہا تھا۔ میرب اٹھنا چاہتی تھی، مگر شاہ کے بھاری ہاتھ اس کی کمر کو مضبوطی سے دبائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنی جگہ سے ہلنے تک کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے جسم پر شاہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے بالکل بھی آزاد نہیں ہونے دے رہا تھا۔ شاہ کا بھاری ہاتھ سرکتے ہوئے ٹھنڈی دھڑکنوں پر رینگتے ہوئے اور بھی سختیاں دکھانے لگا تھا۔ میرب کے مسکراتے چہرے سے اس کے دل کا حال واضح تھا۔ شاہ کی سختیوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میرب نے ہلکی سی سسکی لی، جیسے اس کے اندر کی شدت باہر آ کر گہرا اثر چھوڑ گئی ہو۔ تمہارا بیٹا روم میں ہے، جانے شاہ، کچھ تو ہوش کرو۔ شاہ نے خماردار لہجے میں سرگوشی کی۔ آپ تھوڑی سی شرم کر لیں۔ ٹھنڈی دھڑکنوں پر شاہ کے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر سرگوشی میں دانتوں کو پیستے ہوئے بولی تھی، میرے اندر تو یہ خصوصیت نہیں، لیکن اگر تمہارے اندر یہ فیچر ہے کہ تم شاہ کی محبت کی شدتوں کو خوشی خوشی قبول کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نارمل رکھ سکتی ہو، تو پھر تمہیں اپنے اس فیچر کا استعمال کرنا چاہیے۔ شاہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، جس کے اندر کی شدت اور ارادے کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ میرب اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک تیز تڑپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تو تھی، لیکن اس کے اندر ایک گہرا احساس بھی تھا۔ وہ شاہ کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ بہت مشکل تھا شاہ کو برداشت کرنا، مگر سختیوں کے باوجود اپنے شاہ کے مسکراتے چہرے پر فدا ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، ان کی محبت کے رنگ ہزاروں دیوانے ہوں گے، مگر ان جیسا کہاں۔ شاہ کے فون پر آتی ہوئی بیل نے میرب کی جان کو آزاد کروایا تھا۔ تمہارے بھائی صاحب۔ شاہ کے گہری سانس لیتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں شاہ میر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔
पहले मेरी बात भाई से करवाएं। मीरा अपने शाह के हाथ से मोबाइल लेते हुए अपने भाई से बात करने को बेताब थी और शाह से फोन लेकर वो कान से लगा चुकी थी, जबकि शाह मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। भाई कैसे हैं? मीरा ने मोबाइल पर बात करते हुए अपने भाई का हाल चाल पूछा था। मेरा बच्चा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? रायन, बच्चा ठीक है? शाहमीर ने फिक्रमंदी से पूछा था। जी भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं। हर वक्त शाह हमें कैदियों की तरह हिफाजत में रखते हैं, हमें क्या होगा? मीरा अपने भाई से मोहब्बत भरा शिकवा कर रही थी। मेरा बच्चा, मैं खुश हूँ कि रुमान शाह तुम लोग हिफाजत करता है। इसकी हिफाजत की वजह से मैं पुरसकून हूँ। शाहमीर ने खुश होकर शाह की तारीफ की। दोनों बहन भाई आपस में बात कर चुके थे। शाहमीर ने रुमान शाह से बात करवाने को कहा। मीरा फोन देखकर ड्राइंग के साथ वीडियो गेम खेलने में मसरूफ हो चुकी थी, जबकि शाह फोन लेकर इनसे दूरी बनाते हुए बेड के करीब जाकर बैठ गया था। रुमान, तुम अलीजे को वापस भेज दिया है? सब खैरियत है क्या? इस पर तुम्हें कोई शक था? शामी ने फौरन से सवाल किया। अभी मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर पता नहीं क्यों इससे मुझे खतरे की बू आती थी और इस बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। शाह आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। गुड, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। ऐसे मशकूक लोगों को अपने इर्द गिर्द से हटा ही देना बेहतर होता है। शाहमी ने रुमान शाह के फैसले को सराहते हुए कहा। मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो हुक्म करना, मैं हर वक्त टाइम और मीरब की हिफाजत के लिए हाजिर हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ भी है और हक भी। शाहमीर ने भाई वाले मोहब्बत और जज्बात लहजे में कहा। जानता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ़ हूँ, मगर इस बार इनकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। रोमांचा के लहजे में अज़्म था। ना चाहते हुए भी मैं ज़िंदगी में कहीं न कहीं इनकी हिफाजत करने में पीछे रह गया हूँ, लेकिन शाहमीर, इस बार ऐसा नहीं होगा। रोमांचा ने गहरी सांस लेते हुए हकीकत का एतराफ़ किया। इस बार रोमांचा अपनी जान पर खेल जाएगा, मगर इन पर कोई ज़र्द नहीं लगने देगा। ये वादा है मेरा तुमसे, तुम बेफ़िक्र रहो। इसकी आंखों में गैर मुतज़लज़ल अज़म झलक रहा था। यार, तुम खुद को कसूरवार मत समझा करो। मैं एक भाई होने के नाते तुम्हारे हर कदम से खुश हूँ। तुमने हमेशा मीरब का अपनी जान से बढ़कर ख्याल किया है, इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलात खुदा की तरफ से होती हैं, जिन्हें हर सूरत में आना होता है। अगर हिफाजत की बात की जाए तो मीरब को तुमसे बढ़कर ना कोई मोहब्बत कर सकता है और ना ही मीरब की कोई तुमसे बढ़कर हिफाजत कर सकता है। शाहमीर के लहजे में सच्चाई थी और इसकी आवाज़ में वो एतमाद था जो सिर्फ एक भाई अपने दिल की गहराइयों से किसी के लिए महसूस कर सकता है। शाहमीर की बात पर रोमान शाह के जहन में माजी की एक गहरी याद आकर उभरी थी। अच्छा, तुझे याद है जब मेरे मीरब सीढ़ियों से गिर गई थी और इसकी हालत बहुत खराब थी, तो तुमने इस वक्त सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया था। रोमांचा की आवाज में शाहमीर की कही हुई बात की चुभन थी। इस वक्त तो तुमने एक बार भी यही नहीं सोचा था कि मीरब के लिए कभी लापरवाह नहीं हो सकता। रोमांचा का लहजा संजीदा था, मगर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिस बात का सबूत थी कि इसे शाहमीर से कोई नाराजगी नहीं। वो पुरानी बात को मजाक में बोल रहा है, लेकिन इसमें छुपी हुई सच्चाई साफ थी। साफ इसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि रुमान शाह भूला नहीं था। आज भी सही वक्त पर इसने ज़र्ब लगाते हुए शाहमीर को याद दिलाया था। शायद वो शाहमीर पर यह ज़ाहिर करना चाहता था कि वो हमेशा मीरब के बारे में ही सोचता है और मीरब की हिफाजत से गाफिल नहीं था। बस वो किस्मत का लिखा हुआ दुख था या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम ये बात कभी भूलोगे नहीं। शाहमीर ने शर्मिंदगी से कहा। और मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैंने इस वक्त ये बात सच में तुम्हारा दिल बहुत दिखाया है और तुम्हारी तकलीफ का मुझे भी एहसास था। ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो। इस वक्त मेरे दिमाग पर सिर्फ एक भाई के जज्बात हावी थे। मुझे अपनी बहन की मोहब्बत के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त मुझ में एक आम इंसान बनकर सोचने की सलाहियत नहीं, सिर्फ भाई बनकर सोचने की सलाहियत थी। भाई बनकर सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तुम मेरी बहन की हिफाजत करने में चौंक गए हो और मैं आज भी अपने इस रवैये पर शर्मिंदा हूँ। शाहमीर के लहजे में गहरी शर्मिंदगी और मुखलिसी थी। वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा था। रुमान शाह ने गहरी सांस छोड़ते हुए इस वक्त को झटक कर अपने दिमाग से निकाल दिया था। माजी का वो पस मंजर आज भी रुमान शाह के लिए बहुत तकलीफ दे था। रिलैक्स शाहमीर, तुम्हें शर्मिंदा या नादम करना मेरा मकसद नहीं था। बस यार, ऐसे सरसरी मजाक में मैंने तो बोला था। रुमान शाह ने ये बात कहते हुए शाहमीर को तसल्ली देने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि इसका मजाक कहीं शाहमीर के दिल पर बोझ बन जाएगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मेरा रद्द अमल भी इससे कहीं ज़्यादा बुरा होता। रोमान चाह का मकसद कभी भी शाहमीर को शर्मिंदा करना नहीं था। इसके लफ्ज़ों में हंसी मजाक था, मगर वो चाहता था कि शाहमीर इस बात को हल्के अंदाज में ले और अपनी जगह को सही समझे, क्योंकि इसके दिल में कोई नाराज़गी नहीं थी। वाह, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, नायम ने खुशी से कहा। फिर इज्जत और एहतराम से अपने बाबा की तरफ मुड़ते हुए बोला। हाँ बाबा, कहाँ हैं आप? आखिर देखिए, मैं आपकी गाड़ी को रेस में हरा दिया है। रायन की आवाज में जोश और फखर था, मगर इस वक्त इसमें
اس میں اپنے بابا کے لیے عزت کا عنصر بھی صاف جھلک رہا تھا۔ وہ LED کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے بلند آواز میں روم میں شور مچاتے ہوئے اپنے بابا کو بلا رہا تھا۔ میرا بھی اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر صدقے واری تھی۔ تم رائم کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو اور دیکھو اس نے تمہاری گاڑی کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں بعد میں کال کروں گا۔ شاہمیر نے فون پر رائم کی خوشی سے چہکتی ہوئی آوازیں سن کر خوش دلی سے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رومان شاہ بیڈ سے اٹھ کر رائم اور میرف کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے افسوس زدہ چہرہ بنا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جیسے اسے سچ میں ریس میں ہار جانے کا بہت افسوس ہو۔ او مائی گاڈ، رائم یہ کیا کر دیا یار! اس نے اپنے بیٹے کو پیار سے گود میں اٹھا کر بٹھا لیا اور نظریں سامنے LED پر مرکوز تھیں، جہاں پر رومانچا کی گاڑی کو رائم نے اوورٹیک کر لیا تھا۔ یار آپ نے میری گاڑی کو اوورٹیک کر دیا! رومانچا کے چہرے پر مصنوعی افسوس تھا۔ رائم کی آنکھوں میں خوشی اور جوش تھا۔ وہ اپنے باپ سے جیت کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بابا دیکھیں، میں نے کہا تھا نا میں آپ سے جیت جاؤں گا، اور دیکھیں میں جیت گیا۔ اس کی آواز میں فخر تھا۔ رومانچا نے دل میں خوش ہو کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور کہا تم واقعی بہت تیز ہو یار، لیکن میری گاڑی کو اتنی تیز دوڑانا ٹھیک نہیں تھا یار، تمہیں تھوڑا سا تو احساس کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے بابا کی گاڑی تھی، مانا کہ تم بہت اچھی ریس لگا سکتے ہو، مگر یار مجھے ہرانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی ناراضگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی جو اس کے بیٹے کی کامیابی میں چھپی ہوئی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ہار کی خوشی ہے۔ ایک باپ کا دل ہمیشہ اپنے بیٹے کی کامیابی میں خوش ہوتا ہے، چاہے وہ گیم ہی کیوں نہ ہو۔ رائم کا چہرہ جوش سے روشن تھا اور اس کی آنکھوں میں جیت کی خوشی کی چمک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنگ کے میدان میں ہو۔ اس نے ہاتھوں میں کنٹرولر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ایک پل کے لیے بھی وہ اپنی جیت کی خوشی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بابا، ایک اور گیم لگاتے ہیں؟ اس نے ضدی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک شدت اور پرجوش خواہش تھی۔ نہیں یار، اب میں تمہارے ساتھ ریس نہیں لگاؤں گا، تم تو سچ میں مجھے ہرا دیتے ہو۔ رومان شاہ نے ہنستے ہوئے پیار سے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ کے موڈ میں ایک نرم اور محبت بھرا رنگ تھا۔ رائم نے ضد کرتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ ریس دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے چہرے پر جیتنے کی شدید خواہش۔ وہ ایک اور چیلنج کے لیے تیار تھا اور اس کا عزم مزید بڑھ چکا تھا۔